السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیوز روم۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں جویریہ زید۔ نیوز روم کے آغاز میں بات کریں گے ملک کی معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے اور سیاسی استحکام کے لیے انتخابات کو ناگزیر سمجھا جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اعلان کر دیا ہے کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے اور نگران حکومت کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے گا۔ اب سوالات یہ ہیں کہ کیا واقعی تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تیار ہیں اور کس جماعت کا کیا بیانیہ ہے اور کیا سیاسی حکمت عملی یہ جماعتیں اپنائیں گی، سب پر آج کے نیوز روم میں بات ہوگی۔ جبکہ رخ کریں گے غزہ کا، جس پر اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی جارحیت غزہ کے معصوم بچوں کا مقتل بن چکی ہے۔ عالمی تنظیم کی جانب سے بھی غزہ میں شہید بچوں کی تعداد 4 سال کے دوران دنیا کے جنگ زدہ علاقوں میں مرنے والے بچوں سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ کیا اقوام متحدہ اور عالم اسلام اسرائیلی قاتلوں کا ہاتھ روک سکیں گے؟ آج ہنگامی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے سلامتی کونسل کا، اس میں کیا کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے اور اب تک 3 مرتبہ جو فیلئر رہا اس کا ذمہ دار کون ہے، اس سمیت دیگر اہم ایشوز کی بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج کے دن کی اہم ڈیولپمنٹ ملکی سطح پر، اور وہ ہے عام انتخابات، جس سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، آزاد و شفاف الیکشن کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن تیار ہے، نگران حکومت کو مکمل سپورٹ کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے یہ اعلان کہا ہے کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کے اب تک کے اقدامات پر اطمینان کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت یہ اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون بھی کیا جائے گا۔ نگران پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن نے کوارڈینیشن کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے۔ جبکہ عام انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتظامات ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھرتیوں سے روک دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی الیکشن کمیشن کا خط موصول ہونے کی تصدیق۔ خط میں کہا گیا ہے اسپیکر راجہ پرویز اشرف ممکنہ طور پر اپنے حلقے سے امیدوار ہوں گے، اس لیے وہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں روکیں۔ ذرائع قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خط کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تو جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ الیکشن کی طرف اب ہم باقاعدہ طور پر جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے سابق وزیر اعظم کی واپسی سے بھی لنک کیا کہ وہ اسی صورت میں آئے ہیں کہ جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ البتہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، لیکن اب جب نومبر میں یہ انتخابات ہو جانے چاہیے تھے جو آئینی طریقہ کار تھا اس کے تحت، لیکن جو سقم موجود ہے، جو راستے موجود ہیں، تنگ گلیاں موجود ہیں، اس کے ہی تحت جو مردم شماری ہے، مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہیں، تو اب ٹائم آگے بڑھ گیا۔ تو اب مقررہ وقت ہم کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یہ خود ایک سوال ہے۔ لیکن خیر انتخابات ہو رہے ہیں، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ یہ ہونے چاہیے تھے اور یہ وقت پر ہونے چاہیے تھے، لیکن اس میں کچھ تاخیر ہے، لیکن خوش آئند امر اس میں یہ ہے کہ ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور الیکشن کمیشن تو خیال ان کا جواب یہ ہے۔ بالکل الیکشن کمیشن تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ جنوری کا آخری ہفتہ ہوگا، پھر تاریخ بھی اناؤنس ہوگی، اور اب چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ اس سلسلے میں جو ملاقات ہوئی ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اس کا مزید احوال بھی جان لیتے ہیں۔ ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل بتائیے گا، الیکشن کمیشن تو تیار ہے انتخابات کے لیے، کیا سیاسی جماعتیں بھی تیار ہیں؟ کیونکہ اس طرح سے ہمیں متحرک تو نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کا انتظار کر رہی تھیں، اور جو الیکشن کمیشن نے جو اپنی ٹائم لائن بنائی ہوئی ہے اس میں جو حلقہ بندیاں ہیں وہ 30 نومبر کو جو ہے حتمی فہرست جاری کرے گا۔ اب تک جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف 1300 شکایتیں جو ہیں وہ جو پنجاب پورے ملک کی جو حلقہ بندیاں ان پر موصول ہوئی، اور یہ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے۔ یہ پچھلی 2017 کی جو حلقہ بندیاں تھیں ان سے بھی یہ شکایات کی جو تعداد ہے وہ کم ہے۔ تو یہ یقینی طور پہ الیکشن کمیشن یہ جو شکایات ہے اس کا سارٹ آؤٹ کر لے گا، اور نومبر میں جو ہے وہ حلقہ بندیاں اناؤنس ہو جائیں گی جو حتمی ہیں۔ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے گا،
الیکشن کی تاریخ کا، جو ممکنہ طور پر جو ابھی تک امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں اور ذرائع سے بھی یہ چیز کنفرم ہے کہ 28 جنوری جو اتوار کا دن ہے اس دن الیکشن کروائے جائیں گے، اور الیکشن کمیشن کو تیاریوں کے لیے صرف 50 سے 55 دن درکار ہے۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے ہی جو دسمبر میں حتمی حلقہ بندیاں جو ہے وہ آنی تھی، لیکن جب پولیٹیکل پارٹی سے ملاقات کی الیکشن کمشنر نے تو پھر اس کے بعد اس میں مزید 14 دن کمی کی گئی اور پھر نومبر 30 کی جو ہے وہ تاریخ مقرر کی گئی۔ تو یہ ابھی تک جو معاملہ چل رہے ہیں وہ اس میں جو الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ لوپ میں ہے، اور اب جب الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم پورے ملک کے اندر جو الیکشن کی سرگرمیاں ہمیں ہوتی دکھائی دیں گی۔ جہاں تک مختلف جو قیاسرائیاں ہیں، مختلف سیاست جماعتوں کے جو تحفظات ہیں وہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کے حوالے سے نہیں ہیں، وہ دوسری چیزوں کے حوالے سے ہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقینی طور پر سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ایک خوش آئندہ بات ہے کہ جو الیکشن ہے وہ جنوری میں ہونے جا رہے ہیں۔ جی اچھا عادل، یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے اب واقعی لگ رہا ہے کہ انتخابات جنوری میں ہونے جا رہے ہیں، تو کیا انتخابی عمل جو ہے وہ اس پہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا اعتماد شو کر رہی ہیں؟ دیکھیں، انتخابی عمل پہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اس وقت آنے والے 1-2 دن میں جو صورتحال کریٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی بڑی میٹر کرے گی اس الیکشن کے اندر۔ اس دفعہ جو ہے 12 کروڑ سے زیادہ ووٹرز نے جو ہے اپنے حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، اور صرف پنجاب میں سیکیورٹی کے لیے لاکھوں جو ہے وہ اہلکار درکار ہے۔ دوسری طرف جو 1 نومبر کے بعد جو افغان شہریوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہونا ہے، اس میں پورے ملک کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس کریک ڈاؤن کا حصہ ہوں گی۔ تو یہ آنے والا یہ ٹائم لائن کچھ اس طرح سے بن رہی ہے کہ اس کی وجہ سے شاید کوئی مسائل سیکیورٹی ایشوز بنے، اور پھر بہت ساری چونکہ سائڈ بائی سائڈ بہت سی چیزیں ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اب ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھا جائے گا۔ عادل ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اپنے ناظرین کو ہم بتاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف مری سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف کی سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے گھر آمد ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم طارق فضل چودھری اور اہل خانہ سے بیٹے کے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، تعزیت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق قائد مسلم لیگ نون آج لاہور پہنچیں گے اور نواز شریف لاہور میں باقاعدہ طور پہ سیاسی مصروفیات کا آغاز بھی کر دیں گے۔ نواز شریف لاہور میں مسلم لیگ نون کے پارٹی اجلاس میں شرکت بھی کریں گے، اور اجلاس میں جو آئندہ کی پارٹی کی حکمت عملیہ اور لاہ عمل ہے اس پر مشاورت کی جائے گی، اور عوامی رابطہ مہم کے باقاعدہ آغاز کی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف مصروف ہیں اور مری کے بعد اب وہ اسلام آباد میں ہیں، اور اس کے بعد ان کا پڑاؤ لاہور میں ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عادل ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ عادل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون تو خاصی متحرک نظر آ رہی ہے، باقاعدہ طور پہ عوامی رابطہ مہم بھی شروع کرنے جا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب جو کہ مری میں موجود تھے اب وہ لاہور آ رہے ہیں۔ جی، وہ لاہور روانہ ہو چکے ہیں، یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ان کی آج یہاں پر 2 مصروفیات تھی۔ طارق فضل چودھری کے ایک تو تعزیت کی تھی ان کے بیٹے کی جو ایکسیڈنٹ میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ایک اس کے بعد انہوں نے ایک اور سیاسی رہنما کے گھر دوپہر کا کھانا کھایا اور آرام کیا، اور اس کے بعد وہ پھر لاہور روانہ ہو گئے۔ اب لاہور میں ان کی مصروفیت جو ہے وہ ٹوٹلی پارٹی کی جو تنظیم نو کی گئی ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران، تو اس کے حوالے سے فوکس ہے۔ پھر ٹکٹوں کے حوالے سے ان کا مشاورتی اجلاس ہے جس میں بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اس میں کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، اور دوسری امپورٹنٹ چیزیں چونکہ ہواؤں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اس لیے بہت سارے الیکٹیبلز کا بھی جو رخ ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر جب میاں نواز شریف اس عدالتی پروسیس سے نکل آئیں گے، اس کے بعد جو ان کی جلسے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری پولیٹیکل شخصیات، چاہے وہ جنوبی پنجاب میں ہوں، چاہے وہ سندھ میں ہوں یا وہ اپر پنجاب میں ہوں، وہ ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری پولیٹیکل شخصیات جو ہے ان کا وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کریں گی۔ تو ابھی تک تو صورتحال جو ہواؤں کا رخ بھی بھاری نظر آ رہا ہے اور ہواؤں کا رخ بھی بدل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قسمت بھی ان پہ کافی مہربان نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ محمد عادل، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بات کرتے ہیں پنجاب کابینہ
की, जिसके माली साल 2023-24 के 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी गई है। 4 माह के लिए तरक्याती बजट 350 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट में 80% फंड्स जारी कर दिए गए हैं और तरक्याती स्कीमों के लिए इन फंड्स को रखा गया है। 20% नई स्कीम्स पर खर्च होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ ओवरहेड पुलों की तामीर के लिए 142 अरब रुपए खर्च होंगे। काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन के ज़रिए इस बजट की मंजूरी भी दे देंगे। तो पंजाब काबीना का माली साल 2023-24 का बजट है, 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी गई है। जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 7,000 हसास करार दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशंस पर इजाफी सिक्योरिटी भी होगी, जबकि 2,60,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा। फौज और रेंजर्स के भी 1 लाख से ज़ायद एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कुछ शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर मामलात उलझते चले जा रहे हैं और जो मगरिब है वो एक तरफ वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। कहते हैं फ़ौजी नहीं भेज रहे, हम चाहते हैं कि इंसानी इमदाद भी मिले, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा। इस मसले का हल क्या है? 7 अक्टूबर से तस्फियात उरूज पे पहुँचा, 40s का है, खैर जाता किधर नज़र आ रहा है आपको ये? अब बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये मामलात उलझते नहीं जा रहे, मामलात तो मैं समझता आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, बिल्कुल गंभीर हो गए हैं कि अब लगता है कि शायद ये सीज फायर जो है, जिसकी पूरी कोशिश की गई इंटरनेशनल कम्युनिटी वाया द यूनाइटेड नेशन या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नाकाम हो गई है। वेस्टर्न नेशन तो बड़ी क्लियरली है, सामने नजर आ रहा है उनका रोल, उनका बड़ा एक मुनाफिकत का रोल है। वो ये जितना जेनोसाइड, कत्लेआम, ये जंगी जराइम, ये जो कुछ हुआ है फ़लस्तीनियों के खिलाफ हो रहा है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में होता रहेगा। ये तो वेस्टर्न ममालिक तो उसमें शामिल हैं, दे आर अ पार्टी टू इट। और वो अलग बात है कि उनको इसलिए उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके अपने वर्ल्ड कैपिटल में वेस्टर्न कंट्रीज़ के वहाँ पे उनके अवाम निकल आए हैं बाहर, इसराइल के अंदर उनके अवाम निकल आए हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब नेतन्याहू कि आप ये जंग जो है बंद करें, आपने हमें तबाह करके रख दिया है, ये किस रास्ते पे आप चल पड़े हैं। पूरी दुनिया में जो है वो एहतजाज हो रहा है। एक तो ये बात, दूसरा ये है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए हमास को, पैलेस्टीन फाइटर्स को, कि उन्होंने भरपूर मुज़ाहमत की है, कर रहे हैं। और आप देखें अभी भी वो उनके जो रॉकेट्स हैं, उन्होंने इसराइली जो एंटी मिसाइल डोम उसको पेनिट्रेट किया है। उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ, वो भी हिजबुल्लाह भी एक्टिव है, उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर, पोस्ट के ऊपर जो इसराइल के सर्वेलेंस रडार है उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। समुद्र के रास्ते से उन्होंने सरप्राइज अटैक्स किए, कर रहे हैं वो ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। ये खबर ये सारा कुछ तो ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इसमें एक मसला है, हम वेस्ट की तरफ फिंगर्स पॉइंट कर देते हैं, लेकिन माजरत के साथ आप ये नहीं समझते कि इस सारी सूरत हाल में जो हमारा अपना रवैया है, अपना सलूक है टूवर्ड्स आवर मुस्लिम ब्रदर्स, वो भी ठीक नहीं है? क्योंकि इस तरह की किसी भी लड़ाई में हम सारे लोग अपना मसल इस हद तक दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूअर ब्लॉक बन रहा हो हम उसके क्लोजेस्ट हो जाएं, इससे ज़्यादा की हमारी अप्रोच भी नहीं है। आपकी बात सही है। देखिए, जहाँ तक अगर आप अरब ममालिक का लें जो बिल्कुल अपना गजा को बॉर्डर करते हैं, उनकी तो ऑलरेडी डिप्लोमेटिक उनकी पीस एग्रीमेंट, डिप्लोमेटिक उन्होंने रिकॉग्नाइज कि उनकी पीस एग्रीमेंट है इसराइल के साथ। तो वो तो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, जिस तरह कि 1967 और 73 के अरब इजरायली वॉर्स थी। ये तो सिर्फ वो जो आम फ्रीडम फाइटर ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, या कोई और जो उस इलाके में है इराक में, वो मुज़ाहमत कर रहे हैं। और मैं आपको ये एक बात बता दूं, आपने भी ये कहा था कि ये देखें मकसद तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि वो इसराइली जो है वो तो उनका तो उन्होंने पहले एक नक्शा जारी किया था नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में, कि जिसमें वो फलस्तीन को ख़त्म करना चाहते हैं फ्रॉम द मिडल ईस्ट। और ये जो इनखलाब वो कर रहे हैं, वो गजा को आप देखेंगे, वो गजा को इस नस्ल कशी और ये जो तमाम है वो अपना उसको टेक ओवर करना चाहते हैं, ज़मीनी तौर पे ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। और सिर्फ गजा नहीं, आप देखें उन्होंने गोलन हाइट सीरिया में पहले ऑक्यूपाई की है, वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। जहाँ तक एक मैं आपको बात बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमास और पैलेस्टीनियन आर्म ग्रुप की जबरदस्त हिकमत अमली, फौजी हिकमत अमली सामने आ रही है। वो ये है कि जो इन्होंने ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया अपना गजा में, आप देखें एंटी टैंक वेपन और अर्बन वॉरफेयर में वो उनको बैक डाउन कर रहे हैं, वो उनके टैंक्स को और व्हीकल को दिन रात डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
उनकी एट्रिशन कॉज कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा दे। अच्छा, इसमें एक मसला और है ब्रिगेडियर साहब, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं क्योंकि वो उनका इलाका है और वो जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके एक्सपर्ट है और वो उसमें उनको शिकस्त भी दे रहे हैं। ये अलग बात है कि वो इसराइल जो है वो फ़ज़ाई बमबारी कर रहा है। एक मसला और है, अगर हम इसका कंपैरिजन थोड़ा सा और इसको डीप डाउन जाके देखें, जो वेस्ट है उसका एक बड़ा क्लियर मोटिव है और वो जो उनके अकायद हैं उसकी बुनियाद पर वो उस लार्जर और ग्रेटर प्लान की तरफ अमल पैरा हैं। दूसरी तरफ हमारा, हम मुस्लिम ममालिक का या बिलखुसूस अरब ममालिक और बाकी ममालिक भी आप मुस्लिम ममालिक शामिल कर लें, हमारा कन्फ्यूजन है। हम कन्फ्यूजन का इस तरह से शिकार हैं कि हमने मॉडर्न वर्ल्ड में विद द बॉर्डर्स रहना है, तो फिर उसमें हमें बैनुल अक़वामी मुआहिदों की दीगर मामलात की पासदारी करते हुए चलना है, तिजारत को देखना है। और अगर हम भी वो अक़ीदे के साथ जुड़ते हैं या उसको मजहबी और जज्बाती वाबस्तगी के साथ लेकर चलते हैं तो फिर तो बड़ा दो टोक और वाज़ेह हो जाता है मामला। लेकिन हम ज़ाहिर है मॉडर्न तरीके से चल रहे हैं और दूसरी तरफ वो उनका अक़ीदा है जिस पर वो काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं क्योंकि अकीदा जिसने छोड़ा फिर तो वो गया। जी, मुसलमान ममालिक के, खासकर मैं मिडल ईस्ट के ममालिक की बात कर रहा हूँ, उनके अपने इकोनॉमिक मफादात हैं, अपने सिक्योरिटी के मफादात हैं। उनको मैं नाम नहीं लेता हूँ लेकिन उनको तो मिलिट्री एड मिलती है अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्री से, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ तक इसराइल और वेस्टर्न कंट्री, उन्होंने तो इंटरनेशनल लॉ को तो टोटल फ्लाउट कर दिया है। वो तो कोई ह्यूमन राइट्स हो जाए, एमनेस्टी के मामलात, यूनाइटेड नेशंस के मामलात, मेडिकल केयर, हेल्थ केयर, तमाम जो चीज़ें हैं उसमें तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर दिया है। वो तो उसको टोटली उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि ये मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो किसी किस्म का कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिसमें वो जंग को अवॉइड करना चाहते हैं, वो जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो उसमें मुलव्वस नहीं होना चाहते हैं। जाहिर बात है, मैंने कहा उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जंग जो है ये यानी इसको अगर सादा अल्फाज में गए तो यानी उन मुआहिदों का और फतूहात का जो बोझ है वो सिर्फ फ़लस्तीनी उठाए हुए हैं, बाकी मुस्लिम दुनिया जो है वो अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट कर चुकी है। खैर, वी आर शॉर्ट इन टाइम। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, आपने वक्त दिया। आपका पॉइंट हमारे हमें एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अभी आपको अपडेट करें, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इंजमामुल हक चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात के लिए आए थे। चेयरमैन से मुलाकात ना होने पर वापस जाकर चेयरमैन को इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक जो कि अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ये कमोबेश तीसरी या चौथी बार है कि इंजमामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपने रास्तों को जुदा किया है। और वजह यह बताई जा रही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मामला था। इंजमामुल हक की कोई कंपनी थी जिसकी वजह से उनका इस ओहदे के साथ क्लैश था, उस पर वजाहत के लिए उन्हें बुलाया गया, मुलाकात नहीं हुई और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। चौधरी अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानते हैं। चौधरी साहब, मुलाकात ही नहीं हुई, चेयरमैन साहब आजकल किस मूड में हैं? जी बिल्कुल, ये बात तो बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ, जिनकी मुद्दत अपनी 5 नवंबर को ख़त्म हो रही है, उनसे कोई भी मुलाकात के लिए आए तो घंटों इंतजार करना पड़ता है। हमारे ही पैनल में शामिल है जो साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास, वो भी जब जाते हैं तो चेयरमैन पीसीबी उनसे भी मुलाकात करने के लिए घंटों उनको इंतजार करवाते हैं। आज इंजमामुल हक उनसे मुलाकात के लिए आए क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैंडल था कि जो मफादात का टकराव था कि इंजमामुल हक एक जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर है तो दूसरी जानब उन्होंने कंपनी बनाकर उसके जरिए पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं। तो ये इस पर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे वजाहत भी तलब की थी और उनको कहा था कि आज हम आपको तलब करेंगे और आप अपना वजाहत दे सकते हैं। लेकिन इंजमामुल हक यहाँ पर आए, कज़ाफी स्टेडियम में ही मैं मौजूद हूँ इस वक्त भी, और इंजमामुल हक से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात ना हुई और उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक वो इंतजार करते रहे, जिसके बाद वो चले गए और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप के जरिए अपना इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को भिजवा दिया है। नहीं तो चेयरमैन साहब क्या पीसीबी में है नहीं हैं तो मसरूफ हैं, चाय पी रहे हैं चीनी मिला के, क्या मसला है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं 3 बजे के बाद उनका ऑफिस लगता है और रात गए तक वो बोर्ड में ही बैठे रहते हैं। अभी भी बोर्ड में ही वो मौजूद हैं, लेकिन वो कोई और मीटिंग में मसरूफ थे क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 4 और 5 नवंबर को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी उनका ओहदे की मियाद उनको भी एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा कबूल करना है या नहीं करना, इस हवाले से अब
फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं तो लेकिन ये बात confirm एक है- ऐसे वक्त ये में बात कि confirm है कि इंजमामुल हक ने अपना इस्तीफा ठीक है। चेयरमैन पीसीबी को भिजवा ठीक है, ये आप कंफर्म करें कि उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया है, लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब आपकी टीम जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रही है, फिर वो प्रेस रिलीज़ आती है, फिर एक साबिक क्रिकेटर जो है वो इंटरव्यू में दावा करते हैं या अपनी गुफ्तगू में दावा करते हैं कि तनख्वाहें नहीं मिली, फिर मैसेजेस का मसला, फिर एक इंटरव्यू चेयरमैन का, ये हो क्या रहा है, मसला है क्या? देखिए जी, बिल्कुल ये सारा माली मामलात हैं, पैसे का मामला है, पैसे की रेल पेल बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड कप से जाने से पहले जब खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, वो पुराना ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको 2 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई थी, उसके तहत खिलाड़ियों ने ले ली थी। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा स्कैंडल, जिसमें एजेंट के तौर पर प्लेयर्स को खरीदा जा रहा था, प्लेयर्स का किया जा रहा था, इससे प्लेयर्स पावर प्ले जो है वो जन्म ले रही थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको मामले को दबाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से ही ये खिलाड़ियों की 5 माह बगैर सैलरी के खिलाड़ी नहीं, इसको एक काम करते हैं ज़रा चौधरी साहब, देखने वालों के लिए ज़रा इसको आसान करते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि इंज़मामुल हक की कंपनी है और एजेंट के तौर पे वो काम करते हैं, ज़रा ये एजेंट क्या होता है इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। मैं अब सवाल की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। ये एजेंट वो है जो प्लेयर के लिए लॉबी करता है मुख्तलिफ लीग्स के लिए, मुख्तलिफ मामलात के लिए, कि फ़लानी फ्रेंचाइज उसको ले ले या ढिमकानी फ्रेंचाइज जो है उसके साथ वो डील कर ले। यही होता है एक एजेंट का काम, एजेंट की प्रोफाइलिंग, उसकी चीज़ों को बेहतर करना। बिल्कुल, एक लंदन में एक कंपनी वहां पर रजिस्टर्ड करवाई गई है, जिसके पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान तलहा जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्रेडिटेड यहाँ पर मुलाजिम भी हैं, और वो भी इसी में शामिल है। और तीसरे इंजमामुल हक है। ये इन्होंने 3 बंदों ने कंपनी बनाई है, जिसमें इन्होंने बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी को भी इसी कंपनी के जरिए अपना पार्टनर बनाया हुआ है, और ताकि टीम के ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को इनके जरिए बाहर बरूनी लीग्स में भी काम कर सके, इनका कॉन्ट्रैक्ट कराया जा सके, और आगे PSL आ रहा है उसके जरिए भी इनके जरिए ही प्लेयर्स का, ताकि प्लेयर्स को मिलने वाली रकम जो है ना वो इनके जरिए, इनकी कमीशन के जरिए। ठीक है, उस पर तो इनका कमीशन, इनका बिजनेस है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो इंजमामुल हक साहब की कंपनी है, खैर अब तो वो चीफ सेलेक्टर नहीं रहे, लेकिन जब ये चीफ सेलेक्टर थे और वो कंपनी थी, तो कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनकी कंपनी के जरिए ऑपरेट कर रहे थे, वो टीम में भी नजर आए, या कितने ऐसे लोग थे कि जो पहले सफ़र कर रहे थे, इनकी कंपनी के पास गए तो फिर नेशनल टीम में भी नजर आना शुरू हो गए? ज़रा समझाइएगा। जी वैसे देखिए साहब, ये पे मैं आपको बात बताऊं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि लोगों को ये पता चलना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा टीम जो वर्ल्ड कप खेल रही है, उसके 6 से 7 खिलाड़ियों ने इनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम भी है, इसके जरिए भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने ब्लैकमेल किया, और एजेंट के तौर पर उनको इससे भी कमीशन कहा जा रहा है कि उससे भी मिलेगी इनको। ठीक है, तो यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। एक कंपनी थी इंजमामुल हक की, जिसके ज़रिए प्लेयर्स जो है वो मुख्तलिफ लीग्स में हिस्सा लेते थे, इनका कमीशन होता था, और ये चीफ सेलेक्टर भी थे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर वजाहत के लिए इनको बुलाया गया, मुलाकात नहीं हुई, 1 घंटा बैठे रहे, और उसके बाद ये जब गए तो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। बात कर लेंगे आम इंतखाबात के हवाले से, और इलेक्शन कमिश्नर की जो मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आला पंजाब, और उस मुलाकात में क्या अहम गुफ्तगू हुई, क्या फ़ैसले हुए, इस सब पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम गज़ा की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है, और इसके साथ साथ हम दीगर इशूज़ पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इंतखाबात की ही बात कर लेते हैं, और आपको बताते हैं कि एक अहम मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आला पंजाब के दरमियान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान दरमियान। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कहा है, उससे भी पहले आपको बताते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के जो चीफ सेलेक्टर है इंजमामुल हक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को इस्तीफ़ा भिजवा दिया गया है। इंजमामुल हक ज़का अशरफ से ही मुलाकात के लिए आए थे, मुलाकात नहीं हुई, वो घर गए और घर जाके इस्तीफ़ा भेज दिया। PCB के मुताबिक अपने बयान में इंजमामुल हक का कहना था कि लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं। मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा, मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है कि मैं साइड पर हो जाऊं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे, मैं दस्तयाब हूं। तो एक कंपनी इंजमामुल हक की और उनके पार्टनर्स की थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करती थी, यानी पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स हैं उनके लिए एजेंट फराहम करती थी, और वो एजेंट्स फिर लॉबी करते हैं इंटरनेशनल लीग्स के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। आज वजाहत के लिए इंजमामुल हक को बुलाया गया था, लेकिन फिर चेयरमैन साहब नहीं मिले और फिर इंजमाम ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस वक्त क्या माहौल है PCB का, चौधरी अशरफ साहब क्योंकि वहाँ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे। चौधरी साहब, क्या फिर सूरत हाल है? इंजमामुल हक तो कह रहे हैं कि वो इंक्वायरी के लिए भी दस्तयाब हैं, लेकिन ये
معاملہ آپ کو جاتا کس طرف نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو مجموعی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی، ٹیم سلیکشن، کئی قربانیاں، یہاں سے یہ پہلا سلسلہ ہے، پہلا بکرا آج ہو گیا ذبح۔ آپ نے بات درست کہی ہے کہ آج پہلی قربانی آج آ گئی ہے سامنے، اور انضمام الحق اس سے پہلے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو عہدے سے برطرف کرتا، انہوں نے خود اس کو استعفیٰ دے دیا، کیونکہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا جس میں پلیئرز پاور کے حوالے سے جنم لے رہی تھی، اور جماعتی میں بھی جب پلیئرز پاور نے جنم لیا تھا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بلیک میل کیا گیا تھا۔ اب بھی پاکستان کرکٹ ٹیم جب ورلڈ کپ گئی تو انہی کھلاڑیوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ سینٹرل کانٹریکٹ پہ سائن کرنے سے جانے سے انکار کر دیا کہ سب سے پہلے ہمیں 60 لاکھ روپیہ اے کیٹیگری کو اور بی کیٹیگری کو 47 لاکھ روپیہ ماہانہ منظور کیا جائے، اس کے بعد یہ پاکستان ٹیم جو ہے ورلڈ کپ کے لیے جائے گی۔ وہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے فوری کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ جو چیئرمین خود 4 ماہ کے لیے بورڈ پر آیا ہو بطور مینجمنٹ کمیٹی کا سربراہ ہو تو وہ کس طرح کانٹریکٹ کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر پھر چیئرمین پی سی بی نے ان کھلاڑیوں کو 3 سال کے لیے کانٹریکٹ دیا، اور کانٹریکٹ بھی کارکردگی بیس انہوں نے کر دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب یہ پلیئرز کی آئی، یہ جو اپنا انضمام الحق، رضوان اور جو پی سی بی کے ایک ایکریڈیٹڈ ہیں طلحہ، ان کے درمیان جب یہ اس بات کا سکینڈل سامنے آیا کہ انہوں نے بطور ایجنٹ ایک کمپنی ہائر کر لیا ہے، لندن میں یہ کمپنی رجسٹرڈ کروائی گئی ہے، جس کے تحت آگے مستقبل میں پاکستان کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ یہاں سے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے یہاں سے لیگ کھیلیں گے، انٹرنیشنل مقابلوں میں جائیں گے، انٹرنیشنل لیگ میں حصہ لیں گے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئین کسی طور پر یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بطور چیف سلیکٹر کام کریں تو دوسری جانب آپ بورڈ میں ہی بیٹھ کر ایک نئی کمپنی رن کریں اور بورڈ سے بھی پیسے کمائیں اور بورڈ میں ہی بیٹھ کر کھلاڑیوں سے بھی کمیشن حاصل کریں۔ اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے وضاحت طلب کی تھی، اور آج انضمام الحق کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بلایا بھی گیا تھا۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اس کمپنی، یہ جو موجودہ ٹیم ہے، ذرا اس کو نا مزید سمپلیفائی کرتے ہیں، اس موجودہ ٹیم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی کمپنی کے ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ افیلیٹڈ ہیں، جنہوں نے ان کی سروسز لی ہیں، ان کے ایجنٹس کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ ذرا اسٹیبلش ہو جائے گی نا ساری چیز، ان کی کمپنی، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، سارے معاملات۔ کچھ ہے نمبر آپ کے پاس یا نام؟ جی عبید، آج جب صبح بات ہوئی تو یہ ساری معاملات کو ہم جب چیک کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ ٹیم کے 6 سے 7 کھلاڑی جو ہیں، جس میں حسن علی بھی شامل ہیں، وہ انہوں نے اس کمپنی کے ذریعے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ سے جب موقف لیا کہ آپ نے ایجنٹ کمپنی کو ایسے اجازت دی ہے کہ وہ پلیئرز کے ساتھ کانٹریکٹ کرے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشیل ذرائع کے یہ کہنا تھا کہ یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں 1 سے 2 پلیئرز کے ساتھ کانٹریکٹ کر سکتی ہیں، ٹیم کے 7 سے 8 کھلاڑیوں کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر سکتی، اس وجہ سے اس کو ورلڈ کپ کے بعد دیکھا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، کیونکہ اس خبر کو دبانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور اندرونی ذرائع سے ایک خبر نکالی گئی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو 5 ماہ سے سیلری نہیں ملی، وہ بغیر سیلری کے کھیل رہے، اس وجہ سے کارکردگی متاثر ہوئی ہے، تاکہ یہ بات دب جائے، لیکن یہ بات دب نہیں سکی۔ اور آج جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے انضمام الحق سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا وہ آئے ملاقات کے لیے، 1 گھنٹے سے زائد وقت تک وہ یہاں پر انتظار کرتے رہے، ہم نے بھی ان کی گاڑی دیکھی، ان کی گاڑی پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں کھڑی رہی، پھر اس کے بعد اچانک پتہ چلا گاڑی نکل گئی ہے، تو ہم نے جب پوچھا کہ انضمام الحق، وہ کہتے جی ملاقات نہیں ہوئی، وہ چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چلا کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے مستعفی ہونے سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جب بجائے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، انضمام الحق کا یہ جو ٹینیور ہے 6 ماہ کا، اس میں 2 مرتبہ پہلے بھی وہ مستعفی ہونے کا پاکستان کرکٹ بورڈ کو دھمکی دے چکے ہیں۔ اس سے پہلے جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا تو انہوں نے بورڈ سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ مجھے 3 سال کا کانٹریکٹ دیں گے تو میں بطور چیف سلیکٹر کام کروں گا، ادروائز میں یہ اس عہدے پہ کام نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد پھر انہوں نے استعفیٰ دیا کہ میں کم از کم 30 لاکھ روپے ماہانہ اگر مجھے دیا جائے گا تو میں عہدے پہ کام کروں گا۔ یعنی کہ پہلے ہی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ، کیونکہ بورڈ میں اس اسٹیبلٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بورڈ کو بلیک میل کرتے آئے ہیں، تو اب پھر انہوں نے یہ ایسا ہی کچھ کیا کہ کمپنی بیچ میں بیٹھ کے بنا لی، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پر ابھی ایکشن لینا تھا کہ وہ خود ہی مستعفی ہو گئے۔ جی
जी उबैद। हेलो उबैद, मेरी आवाज आ रही है यहाँ पर? तो ये तमाम तर सूरत हाल आपने जानी है। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़े की वजह अभी सामने नहीं आई है। ये इस्तीफ़ा जब उन्होंने भेजा है, मुलाकात के लिए गए थे ये ज़का अशरफ के पास और मुलाकात नहीं हुई, ये घर वापस आए और उसके बाद अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। जिसने भी ये इल्ज़ामात लगाए हैं सबूत सामने लाए, उनकी जानिब से ये अब बयान सामने आ गया है। चीफ सेलेक्टर है इंजमामुल हक कि अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इंजमामुल हक चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात के लिए गए थे और मुलाकात उनकी नहीं हुई और घर गए, वापस जाकर चेयरमैन को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। बहुत सी र्यूमर्स सामने आ रही थी और उन र्यूमर्स के बाद इंजमामुल हक ने मुलाकात करनी चाहिए ज़का अशरफ के साथ, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो वो घर आए और घर आके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब उनका कुछ बयान भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि इस तरह के इल्ज़ामात लगेंगे तो दुख होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बग़ैर तहकीक के बातें करने से तकलीफ़ होती है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पीसीबी से कहा है कि आप इस मामले की तहकीकात करें। मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल साहब, इंजमामुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि जो र्यूमर्स थी और जो खबरें सामने आ रही थी बग़ैर तहकीकात के, एक तो इन पर गुफ्तगू की जा रही थी, एक तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए और मेरा किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने बात तो सही की है। इंजमामुल हक ने ये कहा है, उनको एक्चुअली उनको ये कन्वे किया गया कि एक 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं तहकीकाती कमेटी के सामने नहीं, पहले आप तहकीकात कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना इंपॉर्टेंट मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा और लग यही रहा है कि इंजमामुल हक के इस्तीफे से एक खलबली सी मच गई है। और ज़का अशरफ साहब को भी पीसीबी के चेयरमैन को कल एक इंटरव्यू में ये नहीं कहना चाहिए था कि हम इंक्वायरी करेंगे, जो कुछ भी चीजें होती है अंडर द कार्पेट्स होती है, नहीं कि आप बाहर आकर इंटरव्यू दें, बयान दें, इस पे टीम पे भी असर पड़ेगा और पाकिस्तान की भी जगह सही होगी। मैं तो हैरान हूँ कि ज़का अशरफ साहब मामला को हैंडल नहीं कर पाए। अगर इंजमामुल हक का कोई ऐसा मामला था कि वो किसी कंपनी के डायरेक्टर थे तो उनको बुलाकर उनसे बात की जाती। आप इंटरव्यू दे रहे हैं ज़का अशरफ साहब और पहले आप उनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद अगर वो कहते हैं कि नहीं जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, इंक्वायरी आप कर लें, तो उस सूरत में होता है। लेकिन यहाँ तो पता ही चल रहा है कि इन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाए जा रहे हैं अनप्रोफेशनल अंदाज से, ऐसा लगता है ऐसे लोग क्रिकेट के मामला चलाने आ गए जिनको क्रिकेट की अली बे भी नहीं पता, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही है। आप देखें भारतीय चैनल किस तरीके से इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं। इकबाल बेग साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब रखना चाह रही थी कि देखें, एक तो हमारी टीम भारत में मौजूद है, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उस हवाले से भी बातें हो रही हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आता है। अभी हम बात उस पर भी कर लेंगे, बाबर आजम की जो गुफ्तगू लीक हुई है उस हवाले से, फिर उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और अब ये ज़का अशरफ साहब का इंटरव्यू और आज ये इस्तीफ़ा, तो ये हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नौकरी बनाई हुई है, इससे लोगों को हंसने का मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फराहम कर रहे हैं। जितने भी काम करने इनको चाहिए कि आप करें, आपका हक है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, आप बुलाते हैं इंजमाम को, आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पर इंजमाम को बुलाने के बजाय उसको इंटरव्यू दे रहे हैं एक चैनल को बुलाकर जो उनका तर्जुमान बना हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो चैनल कैसे तर्जुमान बनाए। और सारे प्लांटेड क्वेश्चन से ज़का अशरफ से जितने भी सवालात किए गए प्लांटेड क्वेश्चन, और सोने पे सुहागा ये कि उस रिपोर्टर को इन्होंने वो कन्वर्सेशन लीक की। साइबर क्राइम है ये तो, वो कन्वर्सेशन जो है कल एक शो में लीक की गई और वसीम बदामी ने बड़ा लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो कन्वर्सेशन आप कैसे किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को लीक कर सकते हैं? साइबर क्राइम है ये तो। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो मेरे पास इत्तलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने, जब राशिद लतीफ ने पीटीवी पर ये कहा कि जनाब अली ज़का अशरफ को फोन कर रहे हैं वो बाबर आजम, लेकिन वो नहीं उठा रहे, तो ज़का अशरफ ने पीसीबी के सीईओ को कहा कि आप राब्ता करें और उससे क्लैरिफाई करें। तो पीसीबी के सीईओ ने जब उनसे बात की इंडिया, तो उन्होंने उनको मैसेज किया कि आप इसको कहने के ऐसा नहीं है। उन्होंने जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं है। पता चला कि वो मैसेज ज़का अशरफ ने पीसीबी के सीईओ से लेकर अपनी सफाई पेश करने के लिए लीक कर दिया और रात को एक प्रोग्राम में चल गया।
तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह। इससे पहले भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान चेयरमैन रहे हैं, तौकीर दिया चेयरमैन रहे हैं, शहरियार खान चेयरमैन रहे, नजम सेठी रहे, कभी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। एजाज बट मरूम चेयरमैन रहे, लेकिन डॉक्टर नसीम अशरफ रहे, लेकिन जिस तरह का मामला चलाए जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ये हंसने का मौका फराहम कर रहे हैं हम दीगर लोगों को। इकबाल साहब, जिस तरह से आप इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं कि मेरा 30 साल करियर है और उसके बाद इस तरह के इल्ज़ामात और उस पर इस तरह की गुफ्तगू, आपको लगता है कि जो इस्तीफ़ा इन्होंने दिया है वो जस्टिफाइड था? देखिए, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो कहते हैं कि इंक्वायरी कराएं। अगर इंक्वायरी करा रहे हैं तो अच्छी बात है। 5 रुकनी कमेटी, इंतजाम कहते हैं कि कोई 5 रुकनी कमेटी बोर्ड ने बनाई। कौन लोग हैं? बोर्ड ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया कमेटी का, और इससे पहले चेयरमैन ने इंटरव्यू दे दिया। मैं तो हैरान हूँ, ये वही इंतजामुल हक है जिनको चेयरमैन ने बुलाकर 25 लाख रुपए माहाना पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया और मुआहदा किया कि 3 साल पहले अगर हम आपको कोई भी निकालेगा तो आपको पूरे 3 साल तक का मुआवजा इकट्ठा दिया जाएगा। तो क्या हो गया अचानक ये चीजें? मेरे ख्याल में मामला को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता तो इतना ज्यादा इशू नहीं बनता, लेकिन जिस तरीके से आप देखें हर चैनल यही दिखा रहा है। इंतजाम कहते हैं कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप तहकीकात करें, इंतजाम आकर, फिर इंतजाम को भी चाहिए कि क्लैरिफाई करे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मेरे पास भी आया, लंदन की कंपनी है, उसमें डायरेक्टर में इंतजामुल हक का नाम है, इनके भाई इंतसारुल हक का नाम है, और उसमें मोहम्मद रिजवान का नाम है, और तलहा रहमानी जो एजेंट है इस कंपनी के, साया कॉर्पोरेशन के कर्ता धर्ता है, उनका नाम भी है। तो इंतजाम इन तमाम चीजों को क्लैरिफाई करें। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह का अहमकाना कदम उठाया कि इंटरव्यू देकर लीक करके, उससे पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। इसको कौन कंपनसेट करे? बिल्कुल से। इकबाल बेग साहब, आपको लगता है कि ये सब कुछ कियोस में हो रहा है? क्योंकि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बाद ऑलरेडी जितने भी अहम ओहदों पे शख्सियात मौजूद हैं, उनसे बहुत से सवालात होने वाले हैं। तो उनसे पहले ही कुछ इस तरह का कियोस मचा हुआ है, और मतलब वो जो बेहंगम सूरत हाल है, उसमें समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या बात कर रहा है और इसमें ये कर क्या रहे हैं। आपने केओस का सही लफ्ज इस्तेमाल किया। मसला ये है कि 5 नवंबर को मुद्दत खत्म हो रही है ज़का अशरफ की। इन्हें 5 जुलाई को इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ने 5 जुलाई को इन्हें पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया था, और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि आप डे टू डे अफेयर चलाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कराएं। लेकिन बजाय इलेक्शन कराने के डे टू डे अफेयर्स चलाने के उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया। डॉन अखबार में खबर छपी कि 60 आदमियों को मुलाजिम रख लिया, आपका जो काम था वो कर नहीं रहे। अब चूंकि वक्त कब रह गया है तो लोगों की तवज्जो इस जानिब डाइवर्ट की जा रही है कि जनाब ये मामलात हैं, ताकि खुद को बचाया जाए। आपने कल इंटरव्यू अगर देखे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि ज़का अशरफ साहब ये फरमा रहे थे कि मैं पीसीबी के पेट्रन से मिलना चाह रहा था, लेकिन वो मुझे वक्त नहीं दे रहे। मजे की बात है कि पीसीबी का पेट्रन ही अपॉइंट करता है। पीसीबी का पेट्रन इस्लाउद्दीन से तो मिल रहा है, कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान से, इनसे क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका मतलब है इन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है कि इनको एक्सटेंशन मिलने वाली नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है। मिर्जा इकबाल बेग से बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि पीसीबी ने इंजमामुल हक के मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया में रिपोर्ट होने वाले मफादात के टकराव के हवाले से इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी की इंतज़ामिया को जल्द पेश करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कमेटी के मेंबरान का ऐलान अभी नहीं किया गया, लेकिन एक कमेटी कायम कर दी गई है। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, जो कि अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी के मेंबरान का भी ऐलान नहीं किया गया, और मीडिया में रिपोर्ट होने वाले मफादात के टकराव के हवाले से इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी की इंतज़ामिया को जल्द पेश करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कमेटी के मेंबरान का ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, जो कि अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और उन्होंने कहा है कि लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफ़े देना बेहतर समझा, मुझ पर
पर सवाल उठेगा तो बेहतर है कि साइड पर हो जाऊं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि पीसीबी ने इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी की इंतज़ामिया को जल्द पेश करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कमेटी के मेंबरान के बारे में अभी नहीं बताया जा रहा है। ये बताया गया है कि 5 रुकनी ये कमेटी बना दी गई है। इससे पहले इंज़मामुल हक भी यही कह रहे थे कि पीसीबी से भी मैंने कहा था कि तहकीकात करें और जो भी मुझ पर इल्ज़ाम लगे हैं वो उसके सबूत भी मुझे दें। तो अब तहकीकात के लिए एक 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। साथ ही साथ इंज़मामुल हक ये कह रहे थे कि मेरा 30 साला करियर है और ये अच्छी बात नहीं है कि बगैर तहकीकात के मीडिया पे इस तरह से गुफ्तगू की जाए। और आज जब वो ज़का अशरफ से मुलाकात के लिए आए, मुलाकात नहीं हुई, वो वापस गए और उन्होंने इस्तीफ़ा भेज दिया। अभी खबर ये आ रही है कि इस मामले पर एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। 5 रुकनी ये कमेटी है जो कि तश्कील दी गई है। कमेटी में जो मेंबरान शामिल हैं वो अभी नहीं बताए गए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी की इंतज़ामिया को जल्द पेश करेगी। इंज़मामुल हक जिन्होंने ऐसे वक्त में ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है जब वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत में मौजूद है और हम देख रहे हैं कि हमारी जो टीम की पोजीशन और सूरत हाल है वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं नज़र आ रही है। ऐसे में उनका इस्तीफ़ा और अब एक तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी गई है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, जो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 254 ये कहता है कि कोई काम ताख़ीर से होने की वजह से गैर आईनी नहीं हो जाता। इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट है। पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी हुकूमत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं है। उनकी गुफ्तगू सुनिए। I want all of you to think in an honest manner. Pakistan is a transitional democracy. What is a transitional democracy? It's a subject which is taught in many universities around the world. We are not a settled democracy. There was a democracy in the Europe. It has taken its own shape, where it morphed from dictatorship to civilian supremacy, and it took them few centuries. There are 2 instances in history. One is called French Revolution and the other is called Glorious Revolution, which was in the case of James I, who fled, and the power was transformed from the monarchy to the parliament in English case. आम इंतखाबात की बात कर लेते हैं। आम इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन भी सरगर्म है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भर्तियों से रोक दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की इलेक्शन कमीशन का ख़त मौसूल होने की तस्दीक। ख़त में कहा गया है कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ मुमकिन तौर पर अपने हल्के से उम्मीदवार होंगे और इसलिए वो सियासी बुनियादों पर भर्तियों को रोकें। ज़राए कौमी असम्बली का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ख़त का जायज़ा लिया जा रहा है। तो आम इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भर्तियों से भी रोक दिया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन का ख़त मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की, जो कि मरी से इस्लामाबाद पहुँचे हैं। नवाज़ शरीफ की साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी के घर आमद हुई है। साबिक वज़ीर आज़म ने डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी और अहले खाना से ताज़ियत की है। ज़राए के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून आज लाहौर पहुँचेंगे और इसके साथ ही लाहौर में बाकायदा तौर पर सियासी मसरूफियात का आगाज़ कर दिया जाएगा। नवाज़ शरीफ लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्टी इजलास में भी शिरकत करेंगे और इजलास में जो पार्टी की हिकमत अमली है और लाहे अमल है उस पर मुशावरत होगी। अवामी राब्ता मुहिम के बाकायदा आगाज़ की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। एक जानिब हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन खासी मुतहर्रिक है, इंतखाबात को लेकर तारीख भी बता दी गई है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग भी खासी एक्टिव नज़र आ रही है और बाकायदा तौर पर जब नवाज़ शरीफ साहब लाहौर आएंगे तो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल हमने आपको बताई। पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके रहनुमा खुर्शीद शाह ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन को जमहूरियत नहीं कहेंगे। किसी को निकाल कर इलेक्शन कराने पर नताइज को कोई नहीं मानेगा। इलेक्शन को तब माना जाएगा जब तमाम पार्टियां इलेक्शन लड़ने का हक रखती हों। इलेक्शन की राह ली तो नताइज 2018 के इंतखाबात के बाद वाले होंगे। तो कुछ एतराज़ात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, जो एक बार फिर खुर्शीद शाह ने वाज़े कर दिया है। दूसरी जानिब शेख रशीद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में पीडीएम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और गिरफ्तार हुआ तो जेल से भी इलेक्शन लड़ूंगा। उनकी गुफ्तगू सुनिए।
मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है और मैं दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाता हूं और निभाऊंगा। बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूं, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत हैं, अजीम सिपा सलार हैं और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फ़ख्र है। हमने कल भी फ़ौज के साथ थे, आज भी फ़ौज के साथ हैं, कल भी फ़ौज के साथ, हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया है, उन्होंने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। तहज्जुद के वक़्त भी वो गर्म पानी देते थे। कौन सी ठंडी जगह थी, कौन सी वो जगह थी, ये अल्लाह को पता है या CPO को पता है। अल्लाह की मदद से, अल्लाह से हमें मदद चाहिए। शेख रशीद की बात हो रही है तो हम लाल हवेली का जिक्र कर लेते हैं, जिसको मतरूका वक्फ इमलाक ने अदालती अहकामात पर 40 रोज़ बाद डी सील कर दिया है। लाल हवेली का अमला भी लाल हवेली पहुंच गया है और लाल हवेली को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ के अहकामात पर डी सील किया गया है। शेख रशीद अहमद आज हाई कोर्ट बेंच में पेश हुए थे। लाल हवेली को मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से 20 सितंबर को सील किया गया था। शेख रशीद के भाई शेख सिद्दीक ने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू किया था और आज बताया जा रहा है कि लाल हवेली को डी सील कर दिया है और जो वर्कर्स थे लाल हवेली के वो भी वापस आ गए हैं। आम इंतखाबात की बात करते हैं जो कि कहा जा रहा है कि वक्त पे होंगे। आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। निगरान हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 टोक ऐलान कर दिया है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की अब तक के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है और इस सब पे बात करने के लिए रफ़ीक रिजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हम उनसे बात करते हैं। रफ़ीक रिजवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो ख़ासी मुतहरिक नज़र आ रही है और पुरज़्म है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। सियासी पार्टीज़ तैयार हैं इंतखाबात के लिए? देखिए, सियासी पार्टियां तो ऐसी हैं जो इंतखाबात के बगैर ऐसे है जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अब बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का बयान आया है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो बयान आया है, उस पर इतनी कोई हैरानी या उस पर कोई खुशी या उस पर इत्मीनान की बात जो है वो मुझे तो बतौर एक कानून के तालिब इल्म के और एक पुराने पार्लियामेंटेरियन और सियासी वर्कर होने की हैसियत से कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये तो होना था, इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होना है। अब बात ये है कि इलेक्शन का ना होने की जो है ना स्पेकुलेशन इतनी बढ़ गई थी मीडिया पे, को ऐसे लगा कि यहाँ इलेक्शन अब नहीं होगा। तो इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है कि हमने इसको बड़ा हाइप क्रिएट कर दी। इसकी मीडिया में दिन रात बहस हो रही है, नहीं होगा, आगे होगा, ये होगा, वो होगा। तो इफ एंड बट्स में ये खबर हमें बहुत बड़ी लग रही है। वाइल एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इट इज नॉट ए बिग न्यूज। ये उनकी एक बात आ गई कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं और करवाने, वो तो करवाने हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और निगरान हुकूमतों की भी ये ऑब्लिगेशन है। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं रफीक साहब। लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड को भी लेके, और खुर्शीद शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं तो नताइज जो हैं वो 2018 वाले होंगे। देखें जी, मैं तो बसाद एहतराम उनसे इख्तलाफ करता हूँ, मेरे ज़ाती मेहरबान है खुर्शीद शाह साहब भी, बाकी लोग भी। बात ये है कि अभी से ये वावेला कर देना, अब उस इलेक्शन के रिजल्ट को जो भी हुआ कौन मानेगा, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, मुल्क में इसी तरह अफरा तफरी का शिकार रहेगा। ये बड़ी अचंभे की बात है और अफसोसनाक बात है। देखें वो कहते हैं 2018 की तरह इलेक्शन का रिजल्ट होगा, अभी तो हल्का बनी है, फाइनल नहीं हुई, अभी तो इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया, अभी तो नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन पेपर्स और स्क्रूटनी और इंतखाबात के निशानात जो मिल रहे हैं उसके बाद इलेक्शन होना है। इलेक्शन डे पे अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात है फिर तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात किए इजहार किया जा सकता है, ठीक है। आज मियां नवाज शरीफ साहब आ गए लंदन से, उनके जी वो हो गए अपना फिंगर, वो क्या हो गया अपना, सॉरी
बायोमेट्रिक हो गया जी एयरपोर्ट पे, ओहो उनका जी इस्तकबाल हो गया, ओहो उनको जी हाई कमिश्नर ने लंदन में सी ऑफ किया, भाई साहब का 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, उस चीज का इंतखाबात से क्या ताल्लुक है? कोई इनसे वोटर लिस्ट गड़बड़ हो गई है कि हमने सारे वोटर जो हैं वो हमने, ठीक है, यानी आपके ख्याल में वक्त से पहले ये बातें हो रही हैं जो कि सही नहीं है। रफीक साहब, अब नवाज शरीफ साहब लाहौर भी वापस आ रहे हैं और जैसे ही वापस आएंगे बताया जा रहा है कि अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया जाएगा, ऐसा ही? इंशाल्लाह हाँ बिल्कुल। उन्होंने जो खबर आई कि पहला जलसा उन्होंने कसूर में करना पड़े, हम एक्टिव हैं, हम तो हमारे तो लोग अपने अपने हलकों में जब से ये अपना मियाँ साहब तशरीफ लाए और जलसा हुआ उसके बाद लोगों में एक नई रूह फूंक दी गई है, और मियाँ साहब ने जो तकरीर की, ठीक है हमारे पार्टी लीडर हैं, हमें हमारी जो उनके तरफ झुकाव होता है, हमारी एक सोच, हमारा मेंटल एप्टीट्यूड, हमारा माइंडसेट डेफिनेटली उधर जाता है, मगर इंडिपेंडेंटली मैं ये समझता हूँ उनके आने से सियासी हलचल मच गई है और उनके आने से शोर मच गया जी लेवल प्लेइंग। ठीक है, यकीनन सियासी हलचल भी जोरों पे है और मुस्लिम लीग नून भी हमें खासी एक्टिव नजर आ रही है उनकी वापसी के बाद। बहुत शुक्रिया रिजवाना साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग हमारे साथ मौजूद थे। दीगर इशूज़ पे भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कि बागों का शहर लाहौर जो कि स्मॉग इस वक्त उसके कंट्रोल में है, लाहौर आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 446 रिकॉर्ड की गई है। फेज़ 8 DHA में 484 और सैयद मरातिब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 457 रिकॉर्ड किया गया है। गले और सांस की बीमारियां फैलने लगी हैं। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी है। गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब की अपील कर दी गई है। तो लाहौर में स्मॉग के बादल नहीं छट सके। ये बताया जा रहा है कि जब तक बारिश नहीं होती तो सूरत हाल वर्स्ट ही रहेगी और बारिश अभी मुतवक्के नहीं है, इसलिए शहरियों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें। अब हम रुक कर लेते हैं आबासी शहीद अस्पताल कराची का, जो तबाहाली का शिकार नज़र आ रहा है। ज़ख्मियों को मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी में मुंतकिल किया जाने लगा है। देखिए बिल्कुल, आबासी शहीद अस्पताल जो है वो महकमा सेहत KMC का कराची में सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ पे फंड्स की भी कमी है और इंतजामिया की भी गफलत है। गुज़श्ता कई बार से यही हाल है कि वहाँ पे जो मरीज आते हैं उनको बैठने के लिए इमरजेंसी में स्ट्रेचर नहीं होते और बैठने के लिए कोई बेंच नहीं होती, तो इस वजह से जो जख्मी आते हैं उनके लिए भी स्ट्रेचर वहाँ पे नहीं होते कि उनको वहाँ पे लेके फौरी इमरजेंसी के गेट से लेके इमरजेंसी के काउंटर तक लाया जाए, जहाँ पे उनका मायना किया जा सके या इमरजेंसी के वार्ड में शिफ्ट किया जा सके। और यही सूरत हाल आज भी ये देखी गई है कि वहाँ पे एक शख्स जो है वो दूसरे जख्मी को लाया और वहाँ पे स्ट्रेचर ना होने की वजह से उसको बाइक समेत अंदर लेकर इमरजेंसी के अंदर पहुंचा, जहाँ पे वो चीखता चिल्लाता रहा कि खुदारा डॉक्टर इनकी मदद करें। उसके साथ साथ जो है दूसरी फोटो में देखा जा सकता है दूसरे उसमें कि एक जो शख्स है वो अपनी बच्ची को लेकर बड़ी मिन्नतें दाखिल और मिन्नतें कर रहा है और इस दौरान जो है वो तलक कलमी हुई है डॉक्टरों के साथ उस शख्स की, और इस हवाले से उसने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदारा अस्पतालों में ये इब्तदाई चीजें होती है जिसको जरूरी होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेचर के लिए लोग जो है वो धक्के खाने पर मजबूर हैं। रहीम, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो गए हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचर नहीं है और इसी तरह से मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया जाता है जख्मियों को अस्पताल में लाने के लिए। शुक्रिया, आप इस सिचुएशन के बारे में बता रहे थे। तो भारत में ICC के वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। मेगा इवेंट में कल एक मैच खेला जाएगा जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें ईडन गार्डन्स के कोलकाता के मकाम पर पंजा आजमाई करेंगी। ये मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आपको बताएं कि 6 मैचेस खेल चुकी हैं। पाकिस्तान की टीम 2 मैचेस जीती है और 4 में इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि बांग्लादेश की टीम की बात करें तो 6 मैचेस वो खेल चुकी है और इसको 1 मैच में फतह और 5 में शिकस्त हुई है। तो दोनों टीमें, पाकिस्तान की बात करें तो 6 में से 2 मैचेस जीती है और दूसरी टीम सिर्फ 1 मैच अभी तक जीत सकी है। आगे बढ़ते हैं, वफाकी काबीना की बात करते हैं जिसने गैस की कीमत में इजाफा रोक दिया है और गैस की कीमतों में इजाफे पर मजीद गौर करने की हिदायत कर ली है। काबीना के इजलास में हज पॉलिसी 2024 और एंटी ह्यूमन स्मगलिंग स्टेशन कायम करने की मंजूरी दी गई है। काबीना को गैर कानूनी अफगान शहरियों को निकालने से मुतालिक ऑर्डर पर भी ब्रीफ किया गया है। तो वफाकी काबीना ने अहम फैसले किए हैं। संगीन जराइम में मुलविस गैर मुल्कियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। पुलिस समेत दीगर इदारों को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हिरासत में लेने का पाबंद किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और प्रोसिक्यूशन और जेल इंतज़ामिया को खुसूसी इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। तो वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ था उसमें कुछ अहम फैसले
بھی کیے گئے تھے۔ لاہور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے ایک روز باقی ہے۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کل ختم ہو جائے گی۔ نمائندہ پی این این شیراز نثار نے آج دن میں ایس ایس پی آپریشنز لاہور علی رضا کے ساتھ بات کی ہے، سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ جی بالکل، غیر قانونی طور پر تارکین وطن جو مقیم ہے یہاں پر ان کو نکالنے کا سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے۔ آج آخری روز ہے ایس ایس پی آپریشن۔ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پوری ارینجمنٹس مکمل ہیں، ڈیٹا مکمل ہو چکا ہے اور مزید امپروو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے ہولڈنگ ایریاز بنائے گئے ہیں جہاں پہ ان کو رکھا جائے گا اور ان کو پروسیس کیا جائے گا، جس میں کھانے پینے کے انتظامات ہیں، رہائش کے انتظامات ہیں اور مینجمنٹ کی گئی ہے، لیڈیز اور جینٹس کے علیحدہ علیحدہ کی گئی ہے، تو انشاءاللہ اکارڈنگلی ہم پروسیڈ کریں گے۔ اچھا علی رضا صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنی تعداد کتنی ہے ایکچوئل جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھی؟ تعداد کیونکہ یہ سرویز چل رہے ہیں، امپروو ہو رہی ہے، لیکن تھاؤزنڈز میں ہے جی۔ اچھا، آپ نے بہت ہی اس پہ پراپر کام کیا۔ یہ بھی بتا دیں کہ ایک عرصے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہے، تو کیا کہیں گے یہ کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر قانونی، اس میں ان کے پاس رجسٹریشن آف پروف ہوتا ہے، ایز سچ جو غیر قانونی ہے ان کی لسٹیں علیحدہ ہیں، لیکن وہ سارے ڈیٹا میں چیزیں موجود ہیں، وہ سب۔ آج آخری دن ہے، کل سے کیا آپریشن کریں گے؟ انشاءاللہ جی بالکل، کل سے شہر بھر میں جو ہے آپریشن کیا جائے گا۔ ایس ایس پی آپریشن علی رضا کا یہ کہنا ہے۔ جی ججز، وزیر اعظم اور لوگوں کی آڈیو ریکارڈنگ انتہائی خوفناک ہے۔ کیا نجی ٹیلی فون گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ کون اجازت دیتا ہے اور قانون کیا کہتا ہے؟ جسٹس بابر ستار نے یہ سوالات کیے، ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پہلے طے کرنا ہے کہ ریکارڈنگ خفیہ اداروں نے کی بھی ہے یا نہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیوز کسی غیر ملکی ایجنسی نے کی ہیں، اگر ہمارے فون کی نگرانی ہو رہی ہے تو پتہ ہونا چاہیے کون کر رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ پارلیمانی کمیٹی کے احکامات پر کسی کے بنیادی حقوق کا معاملہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ عدالت نے اٹارنی جنرل کو وزیر اعظم اور کابینہ سے مشاورت کے لیے 1 مہینے کا وقت دے دیا ہے۔ بشرا بی بی آڈیو لیک کیس جس کے حوالے سے آپ کو ہم بتا رہے تھے کیا ریمارکس دیے گئے، کیا سوالات کیے گئے۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم اور کابینہ سے مشاورت کے لیے 1 ماہ کا وقت مانگ لیا ہے۔ دی نیوز روم سے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اللہ نگہبان۔